Dr. Singh is widely recognized for his contributions to sustainable rice agronomy, conservation agriculture, and climate resilient farming systems. We would also like to invite our distinguished moderator for this session, Sri Raghavan Sampath Kumar, Executive Director, Federation of Seed Industry of India. With his extensive experience in the seed industry and his strong engagement with policy research and industry stakeholders, Sri Sampath Kumar has been instrumental in fostering dialogue on technology adoption, innovation, and sustainable agriculture practices. Also inviting our eminent panelists, Dr. R. Mahendra Kumar, Principal Scientist at ICAR, Indian Institute of Rice Research. Dr. N.T. Yaduraju, former Director, ICAR, Directorate of Weed Research. Inviting Dr. Gopala Krishnan S., Principal Scientist at Indian Agriculture Research Institute. Inviting Sri Suhas Joshi, Indian Carbon Initiative Lead at Biocrop Science Limited. Inviting Sri Umang Agarwal, Chief Operating Officer, Carbon Grow Indigo, who's representing one of the pioneering organizations working to enable farmers to access carbon credit markets. And ladies and gentlemen, before we move ahead with the panel discussion, I invite our session chair, Dr. Sudhanshu Singh, to kindly begin the proceedings with his presentation. Thank you, Sapna. I request all of you to please take your seats. We are in the post-lunch session. We discussed in the morning most of the discussions around technology and what it needs to be done in terms of policy, regulations, and we heard from senior policymakers, ex-bureaucrats. I think this panel is a mix of value chain players which are in a sense complementing to each other. Excuse me. So in a way it is complementing the technology part. And to begin, as a quality of a moderator, I should speak less. So I hand over the session, start with the presentation by Dr. Sudhanshu Singh. Thank you. Thank you, and the chair as well as all panel members. I have already spoken my bit in the morning, and since we are late, we'll quickly go to the presentation. Sorry, मैं हिंदी में बात करूँगा, स्लाइड्स ज़रूर अंग्रेजी में हैं, और अगर वो हो तो मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा बीच में. मैं निदेशक हूँ इस सेंटर का. पहली स्लाइड में आपको जो दिखा रहा हूँ ये बेसिकली क्योंकि लालच होता है कि जो लोग नए हैं, अच्छा मैं कर लूँगा. ये बनारस में सेंटर है, ईरी का साउथ एशिया रीजनल सेंटर, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था. और हम यहाँ से पूरे साउथ एशिया में और कई चीज़ों पे काम कर रहे हैं, ग्रेन क्वालिटी जिसमें मुख्ता है. और पिछले 7-8 महीने में मतलब सेंटर के बारे में 2 बार प्राइम मिनिस्टर बात कर चुके हैं, और हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर अक्सर बातें करते रहते हैं. तो इससे ये होता है कि सेंटर का इम्पोर्टेंस काफ़ी है. और डीएसआर भी हमारा एक मेन सस्टेनेबल राइस और डीएसआर सिस्टम्स पे भी काफ़ी काम कर रहे हैं. वीरेंद्र इसके बारे में बोल चुका है तो मैं स्किप करूँगा. और राइस एक मेजर
क्रॉप है जिसका कि यूज़ हम इमिशन रिडक्शन में कर सकते हैं। और ये ऑलरेडी वीरेंद्र इस चीज़ों पे बात कर चुका है तो इसको मैं अवॉइड करूँगा। लेकिन राइस एज ए क्रॉप आप देखें तो अब इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हो चुका है, एक्सपोर्टर सबसे बड़ा है। और एक जो बड़ा क्वेश्चन सुबह हमने उठाया भी था कि हम इतना चावल पैदा कर रहे हैं और जिसमें आधे रेट पे हम उसको एथेनॉल बना रहे हैं उसमें से बहुत बड़ी मात्रा का, और इकोनॉमिक लॉस भी है और उसके साथ ये भी लॉस है कि हमारा इन्वायरमेंट, हमारी ज़मीन, हमारा पानी, आने वाली जनरेशन्स भी उसका इफ़ेक्ट वो कर रही हैं। तो उस पर कैसे मतलब विचारणीय बिंदु है। आज का प्रेजेंटेशन बेसिकली मैंने ये फोकस ये किया कि कुछ आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताएं कि कैसे एक जो ईस्टर्न यूपी, बिहार और इधर की बेल्ट है उसमें डीएसआर कैसे एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। डीएसआर की जब हम बात करते हैं तो हम खाली राइस की बात करते हैं, लेकिन अगर हम इस पूरे सिस्टम को बदलना चाहते हैं तो उसमें भी डीएसआर एक मुख्य टूल या मेन इंटरवेंशन हो सकता है। और आप पंजाब हरियाणा की तुलना अगर ईस्टर्न यूपी और बिहार और उस इलाके से करते हैं तो जो प्रोडक्टिविटी भी अभी उधर की आधी है, चावल की भी और गेहूं की भी काफ़ी कम है। अगर चावल गेहूं मिला लें तो लगभग पंजाब की तुलना में 30 से 40% कम प्रोडक्टिविटी है। बहुत सारे कारण हैं जिसमें कि किसान की स्थिति, खेती, इनपुट की अवेलेबिलिटी और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस भी हैं, साथ में जो नई तकनीक का भी और मैकेनाइजेशन का भी वहाँ पे अभाव है। और सबसे बड़ी क्राइसिस जैसे मैंने बताया कि वहाँ की प्रोडक्टिविटी अगर आप तुलना करें पंजाब हरियाणा की तुलना में तो लगभग 30 से 40% कम है। अगर इधर पे राइस, चावल, गेहूं मिला के हम 12 से 14 टन तक पहुँचते हैं तो बिहार और ईस्टर्न यूपी में अभी भी हम 6 से 7 टन तक पर ही सीमित हैं। और खाली पंजाब हरियाणा और यूपी की तुलना ही नहीं है ईस्टर्न यूपी की। अगर हम यूपी के भी एक ज़िलों में देखें जो टॉप 10% किसान ले रहा है वो पंजाब हरियाणा के बराबर ले रहा है किसी एक गांव में, और नीचे वाला अभी भी 2 से 3 टन ही ले रहा है। तो समस्या कहीं वहीं में है, लोकल समस्या है। उसके लिए पंजाब हरियाणा या अमेरिका को देखने की जरूरत नहीं है, समस्या हमारे उसी इलाके की है और उसका सलूशन भी उसी इलाके से आएगा। और उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है, क्या है, और उसमें डीएसआर कैसे उसको चेंज कर रहा है, वो उस पर बात करेंगे। एक बहुत बड़ा सर्वे किया था हमारी प्रोजेक्ट ने, सीसा का एक प्रोजेक्ट है जिसमें पंजाब हरियाणा से लेके और ईस्टर्न यूपी बिहार में लगभग 70,000 किसानों से जाके फॉर्म भरवाए थे और उनसे बातचीत की थी। और ये सर्वे मॉड्यूलर नहीं था या उस तरह का नहीं था, किसान से 1-to-1 बात या उससे बात करके उससे पूछा गया था और उसके आधार पे कुछ चीज़ें निकल के आई थी ईस्टर्न यूपी बिहार में। और ये नेचर में जाके पब्लिश हुआ था। नेचर आप जानते होंगे दुनिया की सबसे बड़ी पत्रिका है, तो अगर उसमें कुछ पब्लिश होता है तो उसका एक वो भी होता है। जो चीज़ निकल के आई थी कि वहाँ क्या कारण है कि उत्पादन इतना कम है, वहाँ ये निकल के आया था कि वहाँ पे लेट, मतलब हर चीज़ लेट करना, वो वहाँ पे एक एक्सेप्शन नहीं है, नॉर्म है। जो हमारे उधर का आदमी है, हाँ कर लेंगे, वो उसको चावल लगाना भी है तो जुलाई तक तो सोचता रहता है कि हाँ लगा लेंगे, फिर वो लगाएगा। गेहूं लगाना है तो वो नवंबर में तो सोचेगा, फिर दिसंबर तक जाके लगाएगा। सबसे बड़ा वो कारण उभर के आया था कि, और जब उनसे बात करी थी और ये तय किया था, ये देखा था कि मान लीजिए किसान 1 नवंबर को लगाता है तो कितना गेहूँ होता है, 15 नवंबर तक लगाता है, और उसी से पूछा गया था तो उसने बताया था। तो कुछ चीज़ें बड़ी चौंकाने वाली सामने आई थी। उसमें ये आया था, अच्छा मुझे दिख नहीं रहा है स्लाइड तो मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, कुछ यहाँ थोड़ा वो इशू है। तो एक चीज़ जो निकल के आई थी कि अगर आप नवंबर के बाद एक दिन उधर राइस में लेट, अगर एक दिन आप राइस में लेट करते हैं तो गेहूं भी लगभग 0.8 दिन उसकी सोइंग लेट हो जाती है। 15 से 20 नवंबर के बाद अगर गेहूं बोते हैं तो प्रतिदिन लगभग 40 से 50 किलो प्रति हेक्टेयर नुकसान होता है। और नॉर्मली हमारे ईस्टर्न यूपी में दिसंबर में गेहूं जाके फर्स्ट वीक में बोते हैं तो 4-5 कुंटल तो वैसे ही नुकसान हो जाता है उसमें। और जो 5 चीज़ें सबसे मुख्य निकल के आई थी कि क्या चीज़ ऐसी बदल दी जाए जिससे कि ये पूरा सिस्टम बदल जाएगा, तो उसमें निकल के आया कि अर्ली जो राइस का इस्टेब्लिशमेंट है चावल का, वो सबसे मुख्य है। आप कुछ नहीं करिए, अगर चावल समय पे लगा दीजिए
और चावल समय पे लगाने के लिए सबसे मुख्य निकल के आया था कि DSR है। दूसरा ये एक आया था नर्सरी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और नर्सरी किसान ऐसे ही फेंक देता है, न तो उसमें मैनेजमेंट ढंग का डाल पाता है, और ज़्यादातर जब तक ट्रांसप्लांटिंग होती है 50 से 60 दिन 70 दिन की नर्सरी हो जाती है। वो दूसरा मुख्य कारण आया था। किस्म का आया था कि बहुत किस्में भी वही पुरानी 25-30 साल वाली चल रही हैं। गेहूं में लेट होता है, और गेहूं को टाइम से लगाना, जीरो टिलेज से लगाना। और दूसरा मैकनाइजेशन एक बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। आज से कुछ साल पहले तक ये पूरा इलाका वही फावड़ा, खुरपी और हल से ही खेती करता था। जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा 4000 साल पहले से जो यंत्र थे वो अभी तक हम उसको यूज करते आए थे। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं भी ईस्टर्न यूपी का हूँ, तो मुझे अपने को बोलने में खास शर्म नहीं आती है, लेकिन हम उन्हीं टूल्स का उपयोग आज तक करते आए थे, वो एक मेजर कारण था। तो उसमें जो सबसे मुख्य कारण निकल के आया DSR, कि अगर DSR हम स्टार्ट करते हैं तो उससे बहुत सारी समस्याएं हमारी सुधार हो जाती हैं। वही मैंने सुबह भी जोर दिया कि DSR को आप केवल चावल के लिए मत बेचिए। अगर DSR को सफल करना है तो आपको उसको एक ट्रांसफॉर्मेटिव टूल लेके आना पड़ेगा कि ये पूरा सिस्टम बदल सकता है। एडवांटेजेस में नहीं पढ़ूंगा, ऑलरेडी पूरा इसे बताया जा चुका है। स्कोप बहुत है, आपकी ब्रॉडकास्टिंग का एरिया 20 से 30% है। बुशनिंग जो होती है झारखंड से लेके उड़ीसा तक चले जाइए, वो 40% है। इन सबको आप मैकनाइज्ड में बहुत जल्दी बदल सकते हैं। गवर्नमेंट काफ़ी इच्छुक है। यूपी गवर्नमेंट ने अकेले मुझे टारगेट दिया कि आप 25 लाख हेक्टेयर में DSR कर दो 5 साल में, पैसा जितना चाहिए उतना ले लो। वर्ल्ड बैंक का 400 करोड़ का प्रोजेक्ट मुझे दे दिया, लेकिन अभी चूंकि इकोसिस्टम नहीं है तो मेरे हाथ पैर फूल रहे हैं। स्कोप है, गवर्नमेंट का विलिंगनेस है, अब हमको ये देखना कि हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, करने में सबसे पहला ये है कि DSR की सुटेबिलिटी मैपिंग बहुत ज़रूरी है। जैसा सुबह अभी सरदार जी भी या कोई और भी कह रहे थे कि भाई आप हल्की ज़मीन में नहीं लगा सकते हैं। हमारे यहाँ हर गांव में ही टोपोग्राफी में बहुत अंतर है, तो सबसे बहुत तो एग्जैक्ट और प्रिसाइज सुटेबिलिटी मैपिंग, जो GIS एंड रिमोट सेंसिंग के साथ साथ वो जो लोकल कंडीशन है विलेज की ग्राउंड ट्रूथिंग के बेस पे, वहाँ पानी कैसा है, ज़मीन कैसी है, वहाँ की रेनफॉल क्या है, सबको वो करते हुए एक क्लियर कट सुटेबिलिटी मैपिंग हो। उसके बाद 30%, 40%, 20% जो भी एरिया आइडेंटिफाई हो उसमें DSR लेके शुरू में जाएं, तो हमारी वो संभावना जो फेल्योर होने की है वो बहुत घट जाएगी। मैकनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेराइटीज़ सबसे एक क्रिटिकल रोल रहेगा इसमें। उसके बाद अभी भी जो पूरा इलाका है वो राइस हार्वेस्टिंग 20-25 दिन तक धीरे धीरे करता रहता है, उसको कोई हड़बड़ी नहीं है। हार्वेस्ट करके भी छोड़ देता है, अगर कंबाइन से नहीं हुआ तो वो उसी खेत में पड़ा रहेगा, उसको बदलने की ज़रूरत है। क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट एक ठीक करना पड़ेगा, और गेहूं की जीरो टिलेज सोइंग। DSR का एक बहुत क्लियर कट फ़ायदा ये है कि वो अर्ली सोइंग तो बिल्कुल सुनिश्चित कर देता है कि अगर आपने जून में लगा दिया तो आपका राई चावल भी टाइम से हो गया, और गेहूं के लिए भी आपके पास इतना टाइम है कि गेहूं वो कर लेगा। लेकिन वो अभी भी मिसिंग लिंक है, मतलब मुश्किल से 1-2% एरिया में DSR होता है। उत्तर प्रदेश में 7 लाख हेक्टेयर चावल में 7 मिलियन टन, लगभग 70 लाख हेक्टेयर में चावल है, जिसमें से मुश्किल से 1 लाख हेक्टेयर भी DSR नहीं है। और अगर मैकनाइज्ड DSR की बात करें तो 50,000 हेक्टेयर है। तो सारी उसके बावजूद अभी भी ये चीज़ बहुत बड़ी मिसिंग लिंक है। और क्लियर कट एडवांटेज है, हमारे ट्रायल्स में भी ये है कि अगर आप DSR PTR करें तो टाइमली आपकी सोइंग हो जाएगी। आवाज़ आ रही है ना सबको? हाँ, टाइमली सोइंग हो जाएगी, टाइमली हार्वेस्टिंग हो जाएगी, ईल्ड भी लगभग बराबर आती है, और सिस्टम ईल्ड नेचुरली ज़्यादा आती है। और ये एडवांटेज है। लेकिन मिसिंग लिंक ये है कि DSR है ही नहीं, अभी भी किसानों तक वो पहुँचा नहीं है। कैसे पहुँचाया जाए, जैसा मैंने कहा, पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, जिसमें कि सारे इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को भी काम करना पड़ेगा, कि आप उसकी प्रॉपर डाटा ड्रिवन जो होती है रिमोट सेंसिंग के जरिए हर गांव में आप किसान को ये बताएं कि उसका कौन सा खेत पॉइंट वाइज है जो DSR के लिए सुटेबल है, और कहाँ आप मत जाइए, आप बिना बात के प्रयास मत करिए, और वहाँ पे आप अपनी रुपाई वाला ही वो रखिए। और ये खाली उसी से नहीं होगा, इसमें आपको कुछ और भी चीज़ें लेनी पड़ेंगी। पूरे इस इलाके में और आपके इलाके में भी मशीन की अच्छी सर्वे करके बताना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ मशीन की अवेलेबिलिटी क्या है, कस्टम हायरिंग सेंटर्स, फार्मर प्रोड्यूसिंग ग्रुप कौन से हैं, और एक प्रॉपर मॉनिटरिंग का सिस्टम बनाना पड़ेगा
इन सबको सबसे इम्पॉर्टेंट और शुरू करने के लिए पहला काम ये होना पड़ेगा कि आपको डीएसआर की सुटेबिलिटी मैपिंग करनी पड़ेगी। वैरायटी का रीओरिएंटेशन, अभी भी पूरे इलाके में किसान को हम कह तो देते हैं कि ट्रांसप्लांटिंग से डीएसआर पे शिफ्ट हो जाओ, लेकिन वैरायटी के बारे में अभी बहुत ज़्यादा वो नहीं करते हैं। और केवल चावल में ही नहीं, अगर सिस्टम की बात करें तो चावल के साथ गेहूं का भी एक कम्बिनेशन बना के नहीं चलते हैं और अपने हिसाब से वो करते रहते हैं। हाइब्रिड्स अच्छा कर रही हैं, एचटी टॉलरेंट राइस आ गया है, मीडियम टू शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज़ बहुत सारी हैं। हमारे इलाकों में भी जो आपकी पंजाब 126 काफ़ी चल रही है, बहुत सारी नई नई वेराइटीज़ हैं जो आ गई हैं, लेकिन किसानों तक इसकी पहुंच ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, बहुत ही कम है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि गवर्नमेंट की स्कीम में भी ये सब वेराइटियाँ शामिल नहीं। अगर हम कहें कि हाइब्रिड्स को ले आओ प्राइवेट के, तो वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर नहीं प्रयास करता है कि नहीं साहब इसको तो हम नहीं ले सकते हैं। तो वो भी एक बदलने की ज़रूरत है कि कैसे उसको करके और इसको बदला जाए। और बहुत सारे इलाके में जो ट्रेडिशनल राइसेस हो रहे हैं, जैसे काला नमक उत्तर प्रदेश में काफ़ी हो रहा है जो उस इलाके के हैं, इन सब में भी डीएसआर एक बहुत सुटेबल मेथड है। जो लॉन्गर ड्यूरेशन ट्रेडिशनल वेराइटीज़ हैं वो डीएसआर में काफ़ी अच्छा करती हैं, उस पर भी हमको देखने की ज़रूरत है। और डीएसआर सुटेबल वेराइटीज़ को रीओरिएंट करना है, और उसके साथ गेहूं का एक सिस्टम बनाना पड़ेगा हीट टॉलरेंट वेराइटीज़ का। और उसके बाद जीरो टिलेज पे हम जाएंगे कि भाई डीएसआर के साथ कैसे जीरो टिलेज कंबाइन करें। जीरो टिलेज इस पूरे इलाके में काफ़ी अच्छा हो रहा है, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि लेट राइस होता है तो जीरो टिलेज टाइमली नहीं हो पाता। अगर हम डीएसआर से शुरुआत करें तो फिर जीरो टिलेज को आप कर सकते हैं और सिस्टम प्रोडक्टिविटी उससे बहुत तेज़ी से 7 से लेके 11-12 टन तक जा सकती है। और मैकेनाइजेशन, अगेन ये मैं रीड आउट नहीं करूँगा क्योंकि टाइम बहुत काफ़ी हो गया है। और मैकेनाइजेशन का पूरा आपको सिस्टम सर्कुलर इकॉनमी पे बात करनी पड़ेगी, खाली 1-2 मशीनों से काम नहीं चलेगा। थ्रेसिंग से लेके हार्वेस्टिंग से लेके बेलर्स तक का कंप्लीट सिस्टम बनाना पड़ेगा। लकली बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और इस तरह के रेजिड्यू मैनेजमेंट की कंपनियां काफ़ी आ रही हैं, तो स्कोप काफ़ी है, उसकी तरफ प्रयास करें तो एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। कार्बन क्रेडिट पे अभी चर्चा यहाँ पे होगी, और अभी आपने देखा भी होगा कि 1-2 सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स आए हैं। इंडिगो वालों ने कार्बन क्रेडिट का काफ़ी वो किया है। और राइस में सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल है, ये ऑलरेडी हम जानते हैं, वीरेंद्र ने भी दिन में बताया था कि जो राइस है वो लगभग अकेले आपके दूसरे किसी, चाहे वो एग्रो फॉरेस्ट्री हो चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो, उन सबसे ज़्यादा वो कर सकता है। अगर राइस सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है तो राइस के कल्टीवेशन में अगर आप चेंज कर लें तो सबसे अच्छी क्रॉप भी बन सकती है जो कि इमिशंस को कम कर सकती है। और आप देखें तो जो ये पूरा इलाका है ये रेड जोन में है, यहाँ सबसे ज़्यादा इमिशंस का इम्पैक्ट होता है। इसके लिए पूरा आपको एक सिस्टम, जैसा अभी बताया हमने कि कार्बन के लिए, लो इमिशंस के लिए आपको वाटर मैनेजमेंट अच्छा करना पड़ेगा, उसका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, वैरायटी, और उसके अलावा रेजिड्यू का सिस्टम भी बनाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ एक सिस्टम ये बनाना पड़ेगा कि कैसे उसको कैप्चर किया जाए। आईसार्क में हमने ये पूरा सिस्टम बनाया हुआ है कि आप मीथेन का इमिशंस क्रॉप से लेके सिरिंज में लेके उसको मेजर करके एक बेसिक डाटा जनरेट करना पड़ेगा। उसमें भी हम लैग कर रहे हैं, और प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ और सबको मिलके एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, ताकि कल अगर कार्बन क्रेडिट की बात आती है और किसान को कुछ प्रूव करना है तो कहीं सैम्पलिंग और ये सारी प्रोसेस हो सके। आईसार्क में इसके लिए 2-3 काम हमने शुरू किए हैं। पहला तो ये किया है कि वॉलंटरी कार्बन मार्केट के लिए जो MRBs लगती हैं उसको बनाने का काम कर रहे हैं। यूपी का पहला सेंटर वहाँ बनाया हुआ है हमने, जिसमें कि हम रियल टाइम इमिशंस कैप्चर करके बेसिक डाटा जनरेट कर रहे हैं ताकि स्टेट को फ़ायदा हो सके और बेस डाटा वहाँ बन सके। इसके अलावा बहुत सारे और भी रिपोर्ट प्राइवेट सेक्टर के साथ बेस काम कर रहे हैं, और इसका फ़ायदा ये होगा कि जो किसान अब पडलिंग से DSR की ओर शिफ्ट होगा तो उसको बहुत साल वेट नहीं करना पड़ेगा। हम गवर्नमेंट के साथ मिलके एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बना दे रहे हैं ताकि कार्बन पे भी आगे काम हो सकता है। और DSR को अप्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखें, जैसा मैंने सुबह भी कहा था कि अभी इस बार कुछ हमने डेमोन्स्ट्रेशन कराए, कुछ प्राइवेट कंपनियों के साथ, समाना के साथ भी हाइब्रिड लेके कराया, और बिना हमारी जानकारी के जो किसान जिसके यहाँ हमने हाइब्रिड कराया था, जब गवर्नमेंट की क्रॉप कटिंग हुई तो 10 टन का एक यील्ड उसकी आई पर हेक्टेयर DSR से, और उसको यूपी का हाईएस्ट अवार्ड और 1 लाख रुपया मिला। दैट वाज ए रियली प्लीजेंट सरप्राइज फॉर अस कि हमारा किसान, अच्छा यूपी का पहला ही नहीं, उसमें
इस तरह के बहुत सारे, ज़्यादातर हमारे जो ट्रायल्स थे 7 से 10 टन के बीच में आए, DSR से आए। तो इससे एक यूपी गवर्नमेंट भी काफ़ी कन्विंस हुई कि भाई DSR एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको लेके हम आगे चल सकते हैं। एक जो मैंने आपको सुबह कहा था कि DSR रिजिलियंस भी बढ़ाता है, ये एक एग्जाम्पल है। आप देखेंगे किसान क्या, हमने स्वर्णा सबवन एक चावल की ऐसी किस्म होती है जो बाढ़ में सर्वाइव करती है। पूरे इस इलाके में आज चावल नॉर्मली 2 से 3-4 दिन से ज़्यादा अगर पूरी तरह से अंदर पानी में रहता है तो ख़राब हो जाता है, लेकिन ये सबवन वैरायटी ऐसी होती है, इसमें सबवन एक जीन डाला गया है कि वो पानी के डूबने के बाद भी उसमें कुछ रेजिस्टेंस आता है। अगर उसको DSR के साथ लगाया गया तो वो एकदम बढ़ जाता है उसका रेजिस्टेंस। आप देखिए पूरे 14-15 दिन पूरी तरह से पानी में डूबी रही, उसके बाद की ये स्थिति थी कि लगा कि एकदम ख़त्म हो जाएगी। सबवन जीन होने के कारण और DSR के अंदर जो मजबूती आती है, तीसरी फोटो देखेंगे, ये सब एक ही फील्ड है, ठीक ठाक क्रॉप थी और इसकी भी क्रॉप कटिंग डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने की थी तो 6 टन आया था। मतलब आप बाढ़ के बावजूद अगर सही वैरायटी किसान को दे दें और सही तकनीक दे दें और सही तरीके से कर दें तो कितनी भी विपरीत परिस्थिति में भी वो 6 टन ले सकता है। समस्या हमारी यही आ रही है कि हम किसान तक वो सही तकनीक सही समय पे और सही ढंग से पहुंचा नहीं पा रहे हैं और उसको प्रॉपर हैंड होल्डिंग नहीं कर पा रहे हैं। ये उसका एक क्लियर कट एग्जाम्पल है कि किस तरह से DSR और स्वर्णा सबवन लेके उसने पूरी बाढ़ के बावजूद 6.44 के आसपास है, 6.16 टन है पर हेक्टेयर उसने उपज ली है। एक यूपी गवर्नमेंट इस मामले में काफ़ी एक्टिव है। अभी वर्ल्ड बैंक का एक नया प्रोजेक्ट भी आया है जिसको कि अभी हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उसमें DSR एक मेजर इनिशिएटिव है। DSR के अलावा बहुत सारे हैं और यूपी के 21 जिलों में चलेगा और प्रेसिडेंट बांगा इससे काफ़ी एक्साइटेड भी हैं। अभी उन्होंने 16 अप्रैल को जो अमेरिका में वर्ल्ड बैंक का एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है, वो सरदार जी ने वहाँ बहुत अच्छे से कहा। उसके पहले वो लखनऊ आए थे और डिस्कस किया था, तो उन्होंने इंग्लिश में बोला, आई वांटेड टू कोट दैट आई सेमलेसली वांटेड टू स्टील द यूपी एग्री प्रोजेक्ट एंड रिप्लिकेट इन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि मैं उसको बेशर्मी से चुराना चाहता हूं जो वहाँ इन्होंने बनाया है और जो वहाँ लागू करने जा रहे हैं, और उसको पूरी दुनिया में मैं लागू करना चाहता हूँ। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है कि सरदार जी बांगा साहब ने ऐसा मतलब बोला, उनको कुछ अच्छा लगा होगा तभी उन्होंने बोला। तो ये प्रोजेक्ट अब इस साल शुरू होगा और सीधे किसानों के खेत पे इम्प्लीमेंटेशन का काम हमको मिलेगा, जिसमें निश्चित रूप से DSR और इस तरह की तकनीकी पे काफ़ी काम करके उसको बढ़ाएंगे। और अभी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्केलिंग की ही है। फिर से मैं खैर पढ़ूंगा नहीं सारी चीज़ें, बहुत सारा काम हम स्केलिंग पे भी कर रहे हैं। और अभी आप देखे होंगे 6 अक्टूबर को एक बहुत बड़ी DSR की दुनिया की सबसे बड़ी वर्कशॉप मैंने वहाँ बनारस में आयोजित की थी। 400 से अधिक पार्टिसिपेंट थे, पूरी दुनिया के 15-16 कंट्री के थे। योगी जी ने उसको वो किया था। और अभी पिछले 2 दिनों में 7 और 8 मार्च को अगेन एक पॉलिसी वर्कशॉप की थी, जिसमें भी यूपी गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स और पूरी कंट्री से DDG, ICAR और बहुत सारे लोग थे, जिसमें ये तय हुआ कि अब DSR को एक मेजर पुश देने की ज़रूरत है पूरी कंट्री में। तो ये बेसिक ये पॉलिसीज़ का भी फ़ायदा ये होता है कि गवर्नमेंट का ध्यान उधर जाता है और जो अलग अलग लोग काम कर रहे हैं वो मिलके आपस में चीज़ों को बढ़ाते हैं। और उसका फ़ायदा ये भी होता है कि जिन चीज़ों में हम चर्चा करेंगे कार्बन का, उसका, इन सबको एक बेसिक प्लेटफॉर्म मिल जाता है और उसको हम आगे ले जाते हैं। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करूँगा, ऑलरेडी मेरा 15 मिनट से ज़्यादा हो गया है। तो धन्यवाद, थैंक यू। Thank you so much. Thank you so much, Doctor. In fact, a couple of points emerged from your presentation is there is a more need of synergy between public and private players, mechanization, and analyzing the cause of failure of DSR initiatives to understand what exactly was the lacuna and fulfill it. So, without wasting much time, I would like to check with Dr. Mahendra Kumar, who is Principal Scientist, ICAR, Indian Institute of Rice Research. Doctor, in your opinion, what is IIRR as an institution doing for rice, especially for DSR in India? सर, सभी को मेरा नमस्कार। भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र, मेरा थोड़ा हिंदी उतना अच्छा नहीं रहेगा पर फिर भी थोड़ा कोशिश करूंगा आप सबको समझाने के लिए। ये भारतीय वरी परिषद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद में लोकेटेड है एंड इट इज़ वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन राइस रिसर्च। हम लोग हमारा इंस्टीट्यूट में
3 साल पहले ही हम लोग आइडेंटिफाई कर दिया DSR के DSR सीधा बुआई विल बी गोइंग टू बी टेकन प्लेस अक्रॉस द कंट्री। हम लोग क्या कर दिया, पहले हम लोग वेराइटीज़ डेवलप करना सोच रहे थे। हम जो वेराइटीज़ था वो पूरा नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग में रहते थे, इसीलिए हम लोग क्या कर दिया, special programs we have initiated for DSR. So from right from beginning, initial variety trials say even advanced variety trials will be conducted under DSR conditions, and those varieties जो किस्म उसमें उससे आता वो किस्म बहुत अच्छा पैदावार देगा। इसीलिए we are focusing more on this DSR varietal development. That I think this is the third year of studies. Within another 1-2 years, there will be a lot of, I think, varieties will be in the pipeline. Not only that, we need to think about either we are focusing more on wet DSR, dry DSR. दोनों के लिए भी we are conducting अलग-अलग trials. That is another aspect which we have taken in Institute of Rice Research. हम लोग भी एक कैसा स्केल अप करने के लिए भी 2 साल से हम लोग 20-25 हज़ार फार्मर्स को ट्रेनिंग दिया। हम लोग क्या कर दिया, 1-2 डिस्ट्रिक्ट लेके तेलंगाना में, वो डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग राइट फ्रॉम बिगिनिंग वो ट्रेनिंग करवाया। उसी बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग द एरिया इज़ बीन इंक्रीज टू 10%। पहले दो DSR एरिया, फर्स्ट वी हैव आइडेंटिफाइड क्या प्रॉब्लम है वो DSR, व्हाट दे आर डूइंग इट, एंड उसका क्या क्या इंटरवेंशंस करवाना, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंटरवेंशंस वो all 25,000 farmers का yields they are more or less on par with the transplanted rice, and there is more than 3,000 to 4,000 rupees per acre savings are there. Then these are all I think will be helpful for policy, and also we can upscale it. Now there are technologies are available for upscaling this DSR technologies. Not only that, sir, we are having very good varieties. Even one hybrid has also released in Indian Institute of Rice Research. Any variety has to be released through the IIRR. So we have one very good variety, DRR H4, which will be, I think, especially for the direct seeded rice. Not only that, हम लोग drought के लिए भी 3-4 varieties release करा, DAN 55, DAN 57, DAN 70, DAN 71. So these are the varieties are very highly suitable for the DSR conditions. So this is all about our IRR, which is focusing more on the direct seeder rice, and in future I think we will get very good varieties for promoting DSR. Thank you, Doctor. So the varieties are getting developed, and IIRR as a premier institute, we believe that it will be taken to the market as quick as possible, as well as through the private sector collaborations, I believe. Definitely, sir, definitely. We are always, I think, whatever we are doing it, collaboration with Wonderful. already some varieties which have been developed have been licensed for the private companies. Sure, Doctor. Thank you. I mean, you quoted about the Telangana experience, but I'll come back to you after we do a complete round of other panelists. So let me go to Dr. N.T. Yaduraju, who is a former director of ICAR, Directorate of Weed Research. Dr. Yaduraju, being an expert in this domain, I just wanted to throw a keyword to you. What does it IWM will mean, integrated weed management will mean, and why it is important for DSR? पहले ये बोलना चाहता हूँ कि सुबह से आप ये सुन रहे होंगे खरपतवार का कितना प्रॉब्लम है DSR में। अगर DSR अभी पॉपुलर है, वो मेरे ख्याल में वो 3 मुख्य कारण हैं। एक तो हर्बिसाइड आ गया, अच्छा हर्बिसाइड मिल रहा है, और सेकंड तो मैकेनाइजेशन हो रही है, अच्छी मशीन मिल रही है सोइंग करने के लिए, और तीसरा वेराइटीज़ आ रहे हैं। जो ट्रांसप्लांटिंग में जो वेराइटी होता था वो इधर सक्सेसफुल नहीं होते थे। ये 3 बहुत ही मुख्य कारण हैं, वही DSR हैज़ बिकम पॉपुलर नाउ। और ये सबको मालूम है, और पहले सुबह आप बता रहे थे महापात्रा जी
पहले हम DSR करते थे, हम ही ने साइंटिस्ट ने जाके फार्मर्स को बताया आप ट्रांसप्लांटिंग करो। उस वक्त तो ज़रूरी था, क्योंकि हम कभी सही सोच नहीं सकते थे कि DSR फसल इतना अच्छा होगा, ट्रांसप्लांटिंग का मुकाबला कर सकता है क्या, क्योंकि इतना खरपतवार आता था और उसमें उस वक्त उतना अच्छा हर्बिसाइड नहीं मिलता था, इसीलिए उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। इसीलिए हमने रेकमेंड करते थे इसको चलो ट्रांसप्लांटिंग करो, पडलिंग करो और पानी को इम्पाउंड करो, तभी वो सबमर्ज होता था, सो वीड्स नहीं आते थे। और इसी की वजह से ट्रांसप्लांटिंग पॉपुलर हो गया। बट अभी ट्रांसप्लांटिंग का बहुत ही उसके बारे में सुबह से हम सुन रहे हैं, उसका क्या क्या नुकसान है, उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है एनवायरनमेंट में, इसीलिए हम DSR की तरफ आ रहे हैं। तो अभी मशीन्स मिल रही है, अच्छे अच्छे हर्बिसाइड्स मिल रहे हैं, इसीलिए हम ये इसको पॉपुलर हो गया है। और ये DSR में खरपतवार का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है कंपेयर टू ट्रांसप्लांटेड राइस, और ज़्यादा नंबर भी है, और इसीलिए एक हर्बिसाइड से काम नहीं चलता, प्री एमर्जेंस करना पड़ता है, पोस्ट एमर्जेंस करना पड़ता है, 2-3 को मिक्स करना पड़ता है, क्योंकि इतना वैरायटी को कंट्रोल करने के लिए एक ही हर्बिसाइड से नहीं होगा। और इसके साथ साथ हम अपने IWM पूछ रहे थे इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, इसीलिए दूसरे नॉन केमिकल मेथड्स जो है उसको भी इंक्लूड करना पड़ता है। और अभी तो सुबह से हम सुन रहे हैं HT राइस आ गया है, उसमें इमेज़ाता पर और एक अलग हर्बिसाइड्स के साथ एक ही स्प्रे करने से बहुत सारे खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो आपने ये IRA का वैरायटी हो, कटक का वैरायटी हो या इधर सावाना का हो, ये इसके वो क्वालिटी है। सो इसीलिए इसको हम ये भी टाइम है इसको पॉपुलराइज करने के लिए, और इसके बारे में हम सुबह से चर्चा कर रहे हैं। और ये जो नई चीज़ नहीं है, सुबह भी बताए थे, ये क्लियर फील्ड राइस का नाम से 20-25 साल से ये हो रहा है। इंडिया में नहीं था, लेकिन बाकी कंट्री में ये इसका इस्तेमाल हो रहा था। और इसका अभी आप सुने होंगे सुबह से ये जंगली धाना बोलते हैं, वीडी राइस का प्रॉब्लम जहाँ है उसका ये HT राइस का इस्तेमाल इफ़ेक्ट अच्छा होता है, बिकॉज ये जंगली राइस जो है, वीडी राइस जो है, इसको कंट्रोल करने के लिए कोई रिकमेंडेड हर्बिसाइड है उससे काम नहीं चल रहा है, बिकॉज वो आपको मालूम होगा दोनों में अंतर कम है, और जब तक वो बाल नहीं आएगा तब तक पता ही नहीं चलेगा ये धान कौन सा है और ये वीडी राइस कौन सा है। लेकिन ये हर्बिसाइड जो है वो इसको अलग अच्छी तरह से जंगली राइस को, वीडी राइस को कंट्रोल करता है। इसीलिए ये बहुत अच्छा पॉपुलर हो गया और काफ़ी लोगों ने इसको इस्तेमाल शुरू कर दिया। और ये इसीलिए आप सुने होंगे सुबह ये एक वाई इट हैज़ बिकम मोर पॉपुलर इन मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, बिकॉज वहाँ जंगली वीडी राइस का प्रॉब्लम बहुत है। लेकिन जहाँ आप अभी नॉर्थ वेस्ट में, पंजाब में, हरियाणा में आप बोल रहे हो इसको DSR को शिफ्ट करो, लेकिन पक्की आप ये 2-3 साल के बाद यहाँ भी जंगली वीडी राइस का प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए वी शुड बी वेरी केयरफुल, और इसके बारे में कुछ हमको सोचना चाहिए। और ये बाकी कंट्री में एक्सपीरियंस ये रहा, ये जहाँ क्लियर फील्ड राइस यूज़ कर रहे थे, वहाँ कुछ सालों में जो जिसके लिए हमने लाए थे वो वीडी राइस कंट्रोल करने के लिए, वो रेजिस्टेंट बन गया। ये क्योंकि मैं अभी बता रहा था दोनों में अंतर कम है, इसीलिए वो जीन ट्रांसफ़र जो बोलते हैं उसका जो पराग है वो HT राइस का वो उधर जा सकता है, वो अगर जाने के बाद वो क्रॉस ब्रीडिंग के बाद वो रेजिस्टेंट बन जाएगा। ऐसे ही हुआ, इसीलिए बहुत सारे कंट्री में अमेरिका में हो और मेनी साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका में हो, इवन मलेशिया, मेनी अदर कंट्रीज यही बहुत प्रॉब्लम हो गया। इसीलिए बहुत ये इसको कंट्रोल करने के लिए वी हैव टू थिंक ऑफ अदर मेथड्स ऑफ कंट्रोल। तो ये इसका बारे में हम इसको सोचना चाहिए। अब जब भी स्टीवर्डशिप प्रोग्राम जो बोल रहे थे, मतलब इसको क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, इसका बारे में सुबह वीरेंद्र सिंह बता रहे थे। स्टीवर्डशिप प्रोग्राम का हमने डेवलप किया है, उसको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो
एक दिन वो आपको जंगली वीडी राइस को जो कंट्रोल करने के लिए टेक्नोलॉजी लाए हो, इट बिकम्स इनएफेक्टिव। इसीलिए इसको बहुत ज़रूरी है दैट वी शुड फॉलो स्ट्रिक्ट स्टुअर्डशिप प्रोग्राम। ये को हमने पेपर में तो बनाया है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जहाँ इम्प्लीमेंट नहीं किया प्रॉपरली, इन दोज कंट्रीज इट हैज़ फेल्ड। तो इसीलिए आई थिंक वी नीड टू lay more emphasis on implementing the stewardship program in letter and spirit, and also इसको बहुत सारा ट्रेनिंग का ज़रूरत पड़ेगा, बहुत सारा रिसोर्स मटेरियल डेवलप करना पड़ेगा लोकल लैंग्वेजेस में, वो बहुत ज़रूरी है। True, doctor, true. Thank you so much. In fact, if you read the first sentence in the agenda item of this panel 2, is drawing parallels with technologies like BT Garden. That is exactly you just explained. How do we ensure that the technologies, whatever we bring, does not get succumbed to resistance development? So the key word for me again is that responsible use or judicious use, along with, of course, following stewardship principles. And thank you for your expert comments, Doctor. Moving on to Dr. Gopalakrishnan, who is a principal scientist in IARI. We have spoken about varietal development and everything, Doctor. How do you think physiology and agronomy can play a role? Because we have talked so much about technology, gene, genetics, genomics, whatever it is, but physiology and agronomy, how critical are they? थैंक यू राघवन। मैं कोशिश करूंगा, मैं भी कोशिश करूंगा। काफ़ी लोग सुबह से कोशिश कर रहा है, मैं भी बिल्कुल ट्राई नहीं किया। I know. जैसा बताया, पूसा संस्थान ने दो किस्म पूसा बासमती 1979 और 1985 दो HT किस्में रिलीज़ किया है बासमती में, और नॉन बासमती में भी काम चल रहा है। जल्दी उसमें भी HT किस्में लेके आने की कोशिश है। और इससे अलावा जैसा सुबह बताया गया, ये एक सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी के रूप में देखेंगे तो ये एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन दूसरे तरफ से किसानों की तरफ से देखेंगे तो हम ये एक बदलाव है। बदलाव ऐसा है, बिहेवियरल चेंज जो बताते हैं, हम नॉर्मली जैसा रुपाई करके धान उगाते हैं, उससे कम्प्लीटली डिफरेंट सिस्टम से करना पड़ रहा है। तो पहले हमारा सोच में भी बदलाव लेके आने की ज़रूरत है, तो उससे काफ़ी कामयाब होंगे। और इसमें सिर्फ HT टेक्नोलॉजी एक पहला कदम बताएंगे DSR में, क्योंकि पहला सबसे बड़ा नुकसान होता है खरपतवार से। और इससे अलावा देखेंगे तो सुबह भी चर्चा हुआ है, नेमाटोड्स की प्रॉब्लम डायरेक्ट सीडिंग में ज़्यादा आने की संभावना है। जैसा ही सिस्टम बदल जाएंगे, हमको और कई सारा मुश्किलें सामना करना पड़ेगा। इसके लिए हमारा संस्थान में डॉक्टर रंजीत बैठे हैं इधर, तो हमारा कोशिश यही है HT की साथ डिसीज़ रेजिस्टेंस जो जुलसा और जोंका रोग के लिए भी सहनशील करने की प्रतिरोधी किस्में बनाने के लिए हम काम शुरू किया, और वो अभी ट्रायल्स में है। जल्दी वो किस्में भी फार्मर्स के लिए उपलब्ध होंगे। और उसके अलावा जैसा जिंक का और आयरन का कमी जिस खेत में उन दोनों का कमियां हैं, डायरेक्ट सीडिंग में वो बहुत बड़ा परेशान कर सकता है। तो उसके लिए भी हमको एक तो मैनेजमेंट, एग्रोनॉमी मैनेजमेंट, जैसा जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ेगा तो कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में हम सोच रहे हैं इसके लिए भी सहनशील करने के लिए किसमें जीन्स डाला, QTLs या जीन्स डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे अगर
इसकी मात्रा थोड़ा कम होगा तो भी फसल बहुत अच्छा आ सकते हैं। और इसके अलावा रूट सिस्टम को मजबूत करने के लिए और बाकी सारा ट्रेड्स जो है एक डायरेक्ट सीडिंग में और एक समस्या ये भी आ सकता है आपको, ये पौधा जो है गिरने की डर रहेगा, क्योंकि वो ट्रांसप्लांटिंग में तो आप ज़मीन को अच्छी तरफ तैयार करके करते हैं, तो डायरेक्ट सीडिंग में उसके लिए भी हम जो तना मजबूती के लिए उसके लिए भी जीन्स ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ये सब साथ मिलके और सभी ट्रेड्स साथ में लाएंगे तभी डीएसआर का पूरा पैकेज आएंगे। तब तक तो स्टेप बाय स्टेप मैं इसलिए पहला कदम बता रहा था एसटी का, एक परेशानियां एड्रेस कर लिया हमने डीएसआर के लिए, बाकी सारा एक एक करके हम एड्रेस करने के लिए हमारा रिसर्च जारी है। धन्यवाद। Thank you, Doctor. So two key points from your is there is a significant difference in how the crop gets established, root development happens, and the lodging thing for DSR between, there's a huge difference between transplanted and DSR rice. So, and I'm sure IARI at its forefront of the research, we will have more opportunities to get engaged and collaborate. Moving on to Mr. Suhas Joshi, is the chair of the board, Good Rice Alliance and Director, India Carbon Initiative, Bayer, South Asia. Suhas, we have heard about IWM, we heard about stewardship. So from what your perspective, what are the, say, the clear difference between DSR versus other modes or systems, say AWD, alternate wetting and drying? Is there any significant convergence, or they are totally different? Thank you, Raghavan, and Hindi में sorry. राघवन जी थैंक यू। और आज के ये पैनल में हम दो लोग हैं, मैं और उमंग, who are connected with carbon markets. And rice being a very बहुत important vehicle to enter into carbon markets, DSR being one of the very important approach, this panel becomes very interesting. आपका सवाल का जवाब देने के पहले let me give a quick introduction. मैं बायर कंपनी के लिए काम करता हूँ और हमारा एक जॉइंट वेंचर है बायर, शेल और टेमासेक है, सिंगापुर गवर्नमेंट का एक कंपनी है। ये तीनों को मिला के एक जॉइंट वेंचर हमने बनाया है और ये जॉइंट वेंचर कार्बन फार्मिंग के बिजनेस में ऑपरेट करता है। अभी तक हमने ये जेवी हमने स्टार्ट किया 2023 में और अभी तक हमने अप्रॉक्सीमेटली 60,000 हेक्टेयर का प्रोजेक्ट एक हमने डेवलप किया है और ये प्रोजेक्ट का फोकस है राइस कल्टीवेशन। उस 60,000 हेक्टेयर में अप्रॉक्सीमेटली 22,000 हेक्टेयर जो है वो ड्राई मैकेनिकल डीएसआर है और ये जो 60,000 या तो 22,000 हेक्टेयर है अप्रॉक्सीमेटली पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है, सभी स्टेट्स में। 3 साल में हमने ऑलरेडी ये जो कार्बन फार्मिंग का प्रोजेक्ट है उसके लिए हमने ऑलरेडी किसानों को 20 करोड़ से ऊपर राशि हमने ऑलरेडी बांट दिया है, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। जो किसान हमारे साथ काम कर रहे हैं, ये 60,000 हेक्टेयर जिन्होंने लाया हमारे पास, तो उनको ऑलरेडी हमने अप्रॉक्सीमेटली 20 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। और ये जो 60,000 हेक्टेयर या उसके अंदर 22,000 हेक्टेयर डीएसआर है, इसका हम जो मॉनिटरिंग करते हैं वो बहुत ही रिगरस मॉनिटरिंग करते हैं। सो ईच हेक्टेयर हम अप्रॉक्सीमेटली 120 डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं हर सीज़न में।
तो उसका मतलब प्री सोइंग से लेके प्री प्लांटिंग से लेके सब ऑपरेशन, सब एप्लीकेशन, सब इनपुट्स, उसके बाद हार्वेस्टिंग, यील्ड, पोस्ट हार्वेस्ट कार्बन लेवल, सब मिला के अप्रॉक्सीमेटली 120 डेटा पॉइंट्स पर सीजन पर हेक्टेयर हम कलेक्ट करते हैं। इसका मतलब है अगर ओवरऑल देखें तो 60,000 इंटू 120 डेटा पॉइंट्स फॉर 6 सीजन्स। अगर सिर्फ DSR देखें तो 22,000 इंटू 120 डेटा पॉइंट्स इंटू 6 सीजन। So this is a huge database, and so far I believe such kind of database is very rarely available. तो इस डेटा से हमें जो इंसाइट मिलता है DSR में वो बहुत इंटरेस्टिंग मिलता है। सो कुछ इंसाइट है वो पब्लिक रिसर्च से मैच होता है, कुछ इंसाइट है वो मैच नहीं होता है, बट दैट्स फेयर, आई मीन वो तो रहेगा, हमेशा रहेगा। Now, 1 minute, I know time is limited, but I will step back for 1 minute और आपको थोड़ा सा बताऊंगा कार्बन मार्केट क्या चीज़ है। आई एम श्योर बहुत लोग जानते होंगे, मगर बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। तो अगर आप 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट अगर आप कम करते हो या सिक्वेस्टर करते हो 1 टन, तो वो आपको जनरेट करता है 1 कार्बन क्रेडिट, 1 कार्बन क्रेडिट। और ये जो है ये मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है। इसका मतलब है ये CSR नहीं है या गवर्नमेंट का ग्रांट फंडिंग नहीं है, ये बिजनेस है। और आप जितने कार्बन क्रेडिट जनरेट करोगे 1-1 टन कम करके, उसके लिए देन आपको बायर ढूंढना पड़ता है, कस्टमर ढूंढना पड़ता है। ऐसे कंपनियां जिनको कुछ वॉलंटरी या कंप्लायंस टारगेट है कि उनको आज जो उनका बिजनेस का एमिशन है उनको उसको कम करना है, और वो कम करने के लिए बहुत सारे अप्रोचेस है, मगर उसमें से एक अप्रोच है कि वो कार्बन क्रेडिट खरीद के उनके अकाउंट में वो बताए कि हमने ये खरीदा और हमारा एमिशन 100 टन था, तो एग्जाम्पल तो 50 या 40 टन हो गया। और ये कार्बन क्रेडिट जनरेशन के भी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे अप्रोचेस हैं। मगर हम यहाँ पे जो बात जो रिलेवेंट है हमारे लिए वो है नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कुछ भी प्रोसेस चेंज करके, कल्टीवेशन प्रैक्टिस चेंज करके अगर हम कार्बन एमिशंस कम करेंगे तो उसको हम कार्बन क्रेडिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो कार्बन क्रेडिट जनरेट हो गई उसको देन एक बायर को फाइंड करके उसको बेच के ट्रांजैक्ट करके जो पैसे आएंगे वो हम फिर से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और किसानों को बांट सकते हैं। दिस इज इन वेरी ब्रीफ हाउ द कार्बन मार्केट वर्क्स, एंड एज आई सेड आई वुड अगेन रिपीट दैट दिस इज अ बिजनेस, दिस इज अ मार्केट मैकेनिज्म, दिस इज नॉट अ CSR और दिस इज नॉट अ ग्रांट बेस्ड अप्रोच। तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है एग्रीकल्चर में एंड DSR में? टिपिकली DSR का यूज़ कैसे होता है कार्बन मार्केट में, राइस में? तो यहाँ पे सबको पता होगा कि राइस इज़ वन ऑफ द मेजर मीथेन एमिटर्स। तो हम ट्रांसप्लांटेड राइस ग्रो करते हैं, उसमें जो पानी भरा हुआ रहता है उसके कारण मीथेन का एमिशन बहुत ज़्यादा रहता है ट्रांसप्लांटेड राइस से। और वो मीथेन को अगर हम कुछ भी अप्रोच लेके कम करेंगे, जितने टन्स कम करेंगे उतनी हम कार्बन क्रेडिट जनरेट कर सकते हैं। एंड देयरफॉर एग्रीकल्चर एंड राइस कल्टीवेशन इज अ रेलेवेंट टॉपिक फॉर दिस मीटिंग टुडे। अभी DSR बाय इटसेल्फ इज़ वेरी प्रॉमिसिंग, क्योंकि ट्रांसप्लांटिंग में जैसे पानी भरा रहता है, ड्राई मैकेनिकल DSR में पानी भरा रहना मुश्किल है, क्योंकि उसमें पडलिंग करते नहीं हम लोग, तो सेमी पडलिंग करते हैं, तो उसके कारण हार्ड पैन नहीं बनता और पानी वहाँ पे खेत में जमा रहना मुश्किल होता है। और पानी जितना पॉन्डिंग इफेक्ट जितना कम रहेगा, फ्लडिंग जितना कम रहेगा, उतना मीथेन का एमिशन कम होगा और दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बन क्रेडिट्स। भी एडिशनल एडवांटेज क्या है DSR इन द कार्बन मार्केट? उसका एडिशनल एडवांटेज क्या है?
तो जैसे सब एक्सपर्ट बता रहे थे सुबह से कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम होता है, दैट मीन्स फार्मर का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है। तो ये जो कार्बन बायर्स रहते हैं, कार्बन क्रेडिट के जो कंपनियां रहती है जो बाय करती है, उनको इन चीज़ों में भी बहुत इंटरेस्ट रहता है। इसको बोलते हैं को बेनिफिट्स। मिथेन रिडक्शन तो है, एक बेनिफिट है, मगर एडिशनल अगर हम फार्मर का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, दैट इज़ अ को बेनिफिट। अगर हम सॉइल में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बढ़ा सकते हैं तो दैट इज़ अ को बेनिफिट। सॉइल का हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं, दैट इज़ अ को बेनिफिट। अगर हम पानी बचा सकते हैं तो दैट इज़ अ को बेनिफिट। और ये सब अगर को बेनिफिट ज़्यादा हो गए तो कार्बन क्रेडिट का डिमांड पोटेंशियली बढ़ सकता है और प्राइसिंग बढ़ सकता है। इसीलिए DSR बहुत ही इन आइसोलेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट अप्रोच है। हाउएवर एट द सेम टाइम मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कार्बन बिजनेस इज़ अ मार्केट मैकेनिज्म and therefore scaling revenue generation profitability ये बहुत ज़रूरी रहता है कार्बन बिजनेस में। DSR इन आइसोलेशन इज़ गुड, अच्छा टेक्निक है। अगर आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखेंगे या रिलेटिवली देखेंगे तो अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग भी बहुत अच्छा पॉसिबिलिटी देता है। रीज़न बिंग अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग AWD इम्प्लीमेंटेशन इजी है, स्केलेबिलिटी इजी है, फार्मर को नया प्रैक्टिस ट्रेन करना इजी है, स्केल बढ़ाना भी अच्छा है। DSR में वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग विथ व्हाट, सुबह से मैं फिगर सुन रहा हूँ 1 लाख 2 लाख हेक्टर पूरे हिंदुस्तान में, और कितने सालों से। सो स्केलेबिलिटी इज स्टिल अ क्वेश्चन मार्क। ड्राई मैकेनिकल DSR, वाटर सेविंग DSR में होता है, बात सही है, मगर वो भी हमने हमारे जो 22,000 हेक्टर्स में हमारा एक्सपीरियंस है, हमने बहुत बार देखा है कि परहैप्स रिसर्च फील्ड में वाटर बचता है, मगर फार्मर के फील्ड में रीजंस कुड बी एनी, मगर फार्मर समटाइम्स एंड्स अप इरिगेटिंग मोर देन ऑल्सो इन ट्रांसप्लांटिंग। साइकोलॉजिकल रीज़न हो सकता है, मगर पानी का यूज़ कभी कभी हमने ज़्यादा भी देखा है। फार्मर को पूरा प्रैक्टिस में सपोर्ट करना, ट्रेन करना DSR में बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज यील्ड पेनल्टी आती है। एंड परहैप्स दैट इज़ द रीज़न कि 4,000 रुपये सब्सिडी पर एकड़ दे के भी, मतलब 10,000 रुपये पर हेक्टर हरियाणा में सब्सिडी होने के बाद भी DSR का स्केलअप नहीं हो रहा है। सो उसका पर अगर हम मतलब निकालना चाहेंगे तो पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि ट्रेनिंग, फार्मर ट्रेनिंग और सपोर्ट DSR में बहुत ज़रूरी है। एंड दैट इन्वॉल्व्स कॉस्ट, एफर्ट्स, उसको कॉस्ट जाता है, बहुत एफर्ट जाता है। एज अ कार्बन बिजनेस, वेदर आई शुड फोकस ऑन समथिंग दैट इज सिंपलर और मुझे सेम रेवेन्यू कमा के दे, दैट इज अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग और सम अदर टेक्निक, और शुड आई फोकस ऑन DSR which is so far not been proven as a scalable and not very easy to implement. Stop here. Thank you, Subhas. I think that at the end of the day, the bottom line is what is good for the farmers, what is good for the farmers in their area, in their field. So it's not just necessary that we have to focus on DSR, but there could be other alternatives also. Now, probably in the interest of time, we will, of course, further building on to the carbon discussion. You are a very pioneering player in the carbon trading and carbon, the concept itself. Is it a mirage or is it reality? What does the farmer need to know that whether he can get something out of the carbon market in real terms? Is it possible? Thank you for the question and for inviting me. क्वेश्चन ये है कि कार्बन क्रेडिट क्या एक मिराज है, एक मृग तृष्णा है या फिर एक रियलिटी है, राइट? तो ये क्वेश्चन अगर आप मेरे से 2 महीने पहले पूछते तो शायद वो जवाब थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आता, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि ये रियलिटी है, क्योंकि जो पहला कार्बन क्रेडिट इशुएंस सॉइल कार्बन प्रोजेक्ट्स का हुआ है वर्ल्ड में स्मॉल होल्डर फार्मिंग सिस्टम्स में, वो जनवरी में मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को उसका इशुएंस आ गया था। तो वो ग्रो इंडिगो का प्रोजेक्ट था,
पहला प्रोजेक्ट जो हमने 2019 से जिसकी स्टार्ट डेट है वो शुरू हुआ, लगभग 3 साल उसके ऑडिट और रिव्यू में गए। जैसा अभी सुहास जी ने बताया कि कार्बन क्रेडिट एक डेटा प्रोडक्ट है, वो ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि जिसको हम लुक फील कर सकते हैं, उसका क्वालिटी चेक वो बिल्कुल उसके मोस्टली वो डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसकी सैटेलाइट इमेजरी से जांच होती है, उसका सॉइल सैंपल लेके जो लैब का डेटा आता है, फिर वो क्रॉप सिमुलेशन मॉडल कंप्यूटर में चलते हैं, तो बहुत प्रोसेस है इसके पीछे का। तो ये जो रिपोर्ट हमने 2023 में उसका ऑडिट चालू किया था, 2019 से 22 तक काम किया पहले फार्मर्स के साथ, 22 तक जो डेटा आया उसका 2023 में ऑडिट रिव्यू शुरू हुआ, थर्ड पार्टी ऑडिटर्स आए, फिर उसके बाद रजिस्ट्री जो यूएस की रजिस्ट्री है वेरा, उसके अंदर रिव्यू चला, तो फाइनली 2026 में उसका, एंड दिस इज़ द फर्स्ट प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल कार्बन क्रेडिट्स फ्रॉम इंडिया इन वेरा। नाउ अगर आप फार्मर के उससे देखें तो फार्मर क्या चीज़ को वैल्यू करते हैं, पहली बात तो, और ये चीज़ मैं भी सीखा पिछले 5 साल जो मैं कार्बन फील्ड में रहा हूँ कि और मैं साइंस बैकग्राउंड से आता हूँ, और मेरी जो हमारी कंपनी की फाउंडर हैं डॉक्टर उषा, वो भी साइंटिस्ट हैं ट्रेनिंग से। तो हम लोग जब ये कार्बन प्रोग्राम को कंसेप्चुलाइज करना शुरू किया तो बहुत साइंस के उससे सोच रहे थे कि यार डेटा क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, हाई क्वालिटी कार्बन क्रेडिट बनाना है, वही बायर्स उसको वैल्यू करते हैं। लेकिन 5 साल में मैंने सोचा कि जो सीखा उसके साथ सोशल साइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सोशल साइंस फ्रॉम कार्बन पर्सपेक्टिव की जो रजिस्ट्रीज मांगती हैं कि उसमें जो भी आप काम कर रहे हैं उससे कोई हार्म तो नहीं हो रहा है, उससे कोई बायोडाइवर्सिटी लॉस नहीं हो रहा है, उससे किसी को एक्सक्लूड नहीं किया जा रहा है प्रोग्राम में, ये सब चीज़ें भी आपको डॉक्यूमेंट करनी होती हैं अच्छा प्रोग्राम बनाने के लिए। उसमें कार्बन तो आप नाप रहे हैं, लेकिन पानी का क्या हो रहा है, और गुड थिंग इज़ कि डीएसआर से तो पानी भी बचता है, लेकिन और किसी क्रॉप में और किसी चीज़ में पानी वगैरह उसका क्या इफ़ेक्ट है, फार्मर का आप कंसेंट ले रहे हैं या नहीं रहे हैं, फार्मर को पता है क्या कि जो क्रेडिट आएगा उसका कितना हिस्सा फार्मर को जाएगा, कितना पेमेंट होगा, कब होगा, ये सब चीज़ें आपको प्रोजेक्ट में बहुत ट्रांसपेरेंटली डॉक्यूमेंट करनी होती हैं। और दूसरा सोशल साइंस का जो एस्पेक्ट है वो फार्मर बिहेवियर, एंड दैट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट। कि पहले जब हम फार्मर्स को बोलते थे मीथेन ये वो पूरा साइंस, पहले 5 मिनट में आई न्यू कि फार्मर इज़ नॉट विद मी, राइट, वो अपने जोन में चले गए, मैं अपना कुछ बोल रहा हूँ, राइट, या फिर टीम। तो फिर धीरे धीरे हम समझा कि अल्टीमेटली फाइनेंस मैटर्स, राइट, सो बॉटम लाइन इज़ द बॉटम लाइन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बॉटम लाइन को प्रॉफिट कहते हैं। तो फार्मर का इनकम कितना बढ़ रहा है उस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करके, वो क्यों चेंज करें, उसका वो बहुत क्लियर हमें डेमोन्स्ट्रेशन करना होता है। सो आई थिंक दैट इज़ वेयर कार्बन क्रेडिट की जो इनकम है वो एक बहुत बड़ा बूस्ट होती है। साथ में पॉलिसी है, रिसर्च है, देयर आर अदर प्रोडक्ट्स, प्रैक्टिसेस के साथ प्रोडक्ट्स हो गए, फिर आपकी प्लांट जेनेटिक्स हो गई, ये सब भी इम्पोर्टेंट है, बट फाइनली फार्मर का क्या प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज़ व्हाट आई थिंक रियली ड्राइव्स द एडॉप्शन। Thank you, Umang. I mean, actually, this conference started with genetics, genomic, all those sort of high-tech scientific thoughts. Now you are closing it with behavioral science. So behavioral and social science is actually we are closing with. Yes, I'll come to you, doctor. 1 second. So what is important for us to understand here is it is a high-intensity, high follow-up requirement, and as well as it is important for the farmer who is involved to make him or her understand. So that is the most important thing that we are talking about. Dr. Yaduraju, please, closing. I just want तो इनसे जोशी या उमंग से मैं पूछना चाहता हूँ 2 थिंग। फर्स्ट थिंग इज फार्मर को एक कार्बन क्रेडिट से एवरेज कितना मिल सकता है पर एकड़, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, ये बर्निंग जो चल रहा है, this will be a solution, whether can we sort of show it as some, maybe converting it to biochar or something? ये दोनों में कोई आजकल पहले का जवाब मैं दूंगा, मगर बर्निंग आई एम श्योर ही हैज़ मोर एक्सपीरियंस, सो ही कैन टॉक अबाउट इट। कार्बन क्रेडिट में सिर्फ कितना पैसा मिलेगा दैट इज़ कम्प्लीटली सब्जेक्टिव। ऐसा कोई रूल नहीं है कि कार्बन क्रेडिट $5 में बिकनी चाहिए या $10 में बिकनी चाहिए या $100 में बिकनी चाहिए। इट्स अ मार्केट। मार्केट में जो सेल कर रहा है और जो बाय कर रहा है उनके बीच में क्या अग्रीमेंट होता है,
क्या निगोशिएट होता है, उसके हिसाब से कार्बन क्रेडिट की प्राइस डिराइव होती है। बहुत सारे फैक्टर्स है, क्वालिटी ऑफ द क्रेडिट्स, को बेनिफिट्स, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, एविडेंस, एडिशनल सोशल इम्पैक्ट। रफ एस्टिमेट एज आई सेड $5 की भी मिलती है $5 से और $90-100 की भी मिलती है। एंड देयरफॉर प्राइस, फार्मर का पेमेंट भी उस प्राइस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जो प्रोजेक्ट डेवलपर है उसको जितना प्राइस मिलेगा उसी में से वो फार्मर को दे पाएगा। सो दिस इज सब्जेक्टिव, मार्केट ड्रिवन, एंड this could vary depending on number of factors. Crop burning, please. श्योर। एंड जैसे सुहास जी ने बोला कि मार्केट में कोई ऐसा बेंचमार्क्स हैं, लेकिन ये स्टॉक एक्सचेंज की तरह नहीं है कि यहाँ पे बहुत ट्रांसपेरेंटली प्राइस कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट इसमें ट्रांसपेरेंसी आ सकती है कि जैसे हम फार्मर के साथ जो इन्फॉर्मेशन कंसेंट करते हैं कि तो ग्रो इंडिगो के प्रोग्राम में खासकर क्या होता है कि 75% हरियाणा पंजाब में जो हमारा प्रोग्राम है वो फार्मर को जाएगा। जैसे ही कार्बन क्रेडिट इशू हुआ, उसका सेल हुआ, तो पहला 75% फार्मर को जाएगा, उसके बाद जो 25% है उसमें जो हमारी कॉस्ट लगी है, मार्जिन है, वो कवर होता है। सो दैट इज़ डॉक्यूमेंटेड। सो पेमेंट के बाद दूसरा आपका पराली का क्वेश्चन था। तो इसमें थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है जब आप कार्बन के रूल्स में जाते हैं, और अगर यहाँ पे पंजाब हरियाणा की बात करें जहाँ पे पराली बर्निंग बैंड है, तो आप किसी को लॉ फॉलो करने का इंसेंटिव नहीं दे सकते, ऐसा राइट। तो देयरफॉर पराली बर्निंग रोकने से आप कार्बन क्रेडिट जनरेट नहीं कर सकते। लेकिन इसी सिक्के का जो दूसरा वो है कि अगर उस पराली को मिट्टी में मिला देते हैं, उसका सॉइल कार्बन बढ़ जाता है, तो उसको नाप के जो जितना कार्बन बढ़ा उसका कार्बन क्रेडिट बन सकता है। Sorry, yes, we can have 1 or 2 questions maximum, please. Yes. Quickly, I don't have questions. Sorry? Just 2-3 suggestions. please. Say there's a lot of discussion on DSR specific varieties or PTR specific varieties. Based on long-term experience across states and locations, what I can say is in different segments, maybe hybrids, inbreds, local varieties, potential varieties, traditional varieties, ERI varieties, STRVs, and specialty rice, iron, zinc fortified, even low GI rice and HTs. Almost performance of these varieties at a particular location or multi-locations was not much difference between PTR and DSR. DSR has an edge, number one. So the breeders come out with some good specific varieties, farmers can start it. Number two, mechanized DSR should be treated in a system approach, not all alone. If we seek benefits, MDSR after zero tillage wheat, or mechanized DSR followed by mechanized pulses and oil seeds, then we'll harness full benefit. And third one is, Dr. Yaduraju has covered integrated weed management, so most of the points, but if there is a problem and emergency due to weedy rice or anti-rice or specific problems, then try to rotate DSR maybe after 3-4 years once with PTR. There's no hard and fast rule, it's happening already. And fourth is, because it is knowledge intensive technology, it's a component, mixture of component technology, including say seed, time, herbicides, nutrition, so many things. So first try to educate service providers and farmers fully, and when we come out with results, before blaming the technology, let us find out the fault first. So try to take care beginning, and the training must be robust, not only of farmers or service providers, but of master trainers also. Yep. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Please. Please use the mic. Mic. हम मिर्ज़ापुर से हैं, और इस बार जो DSR हमारे हुआ था 60 एकड़, उसमें सर जी जियो टैग वराह कंपनी द्वारा कार्बन क्रेडिट के लिए किया गया था, और हम लोगों ने पराली भी ट्रैक्टर से मल्चिंग किया खेत में, उसमें भी पैसा लगा, और आज तक कोई आया नहीं हमारा देखने खेत। भरोसा किस पे किया जाए? ओके, थैंक यू। हम किसी कंपनी की नाम नहीं ले सकते हैं अभी, बट एज अ कॉन्सेप्ट इट इज़ अ लर्निंग दैट द कंपनीज हु आर एंटरिंग इन दिस बिजनेस
or at least in promoting DSR should be scrupulous and to be ethical, genuine. That is what the message is. Thank you. One more. Yeah, Sir. my question. सर, 1 एकड़ DSR करने से कितने कार्बन क्रेडिट्स एक फार्मर अर्न कर सकता है? एक तो ये सवाल है मेरा। और दूसरा ये है कि जो हम पराली बीच में इनकॉर्पोरेट करते हैं, ये भी बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट वाली बात हो जाती है। कई तो कहते हैं कि इससे हम सॉइल की मीथेन बाहर ज़्यादा निकाल रहे हैं, और कई ये कहते हैं कि जितना उसमें इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और स्ट्रॉ जला के जो इफेक्ट्स आ रहे हैं उससे वो कम होता है। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सा है, इसको थोड़ा क्लैरिफाई करो आप। इन दो बातों का बता दो मेरे को। तो डॉक्टर सुधांशु की आई थिंक स्लाइड भी थी वो, और वो ज़्यादा बेटर बता भी पाएंगे। लेकिन स्टेट टू स्टेट, क्लाइमेट टू क्लाइमेट और सॉइल टू सॉइल और ऑफ कोर्स ड्यूरेशन, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो राइस के मेथेन एमिशन को अफेक्ट करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दैट आपको 1 हेक्टेयर में 2 क्रेडिट से 5 क्रेडिट या 6 क्रेडिट, बड़ी रेंज है। तो एक तो वो हो गया, और दूसरा आपका था कि पराली को अगर आप मिट्टी में मिलाते हैं तो अगले सीज़न में शायद मिथेन थोड़ा ज़्यादा निकलता है। तो ट्रेड ऑफ है कि यू आर राइट कि मिथेन थोड़ा सा ज़्यादा निकलेगा, बट ओवरऑल तो कम ही होगा कंपेयर टू ट्रांसप्लांट। ओवरऑल तो कम ही होगा, और मिट्टी का कार्बन भी बढ़ेगा। और मिट्टी के कार्बन के जो क्रेडिट होते हैं उसकी वैल्यू थोड़ी मार्केट में ज़्यादा होती है, मिथेन रिडक्शन की थोड़ी कम होती है। तो वो ट्रेड ऑफ है। मतलब सर, अगर हमारी सॉइल में जैसे 0.1% ऑर्गेनिक कार्बन था 8 साल पहले, मैं 8 साल से इनकॉर्पोरेशन कर रहा हूँ स्ट्रॉ की सॉइल में ही, तो आज वो 0.5% हो गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू बन जाती है कार्बन क्रेडिट्स के पॉइंट में अगर लिए हम तो 0.1 से 0.5% ऑर्गेनिक कार्बन। ये एक्चुअली बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया, इसके बाद बात कर लेंगे। बट कार्बन क्रेडिट में एक और चीज़ है कि वो आप अगर 8 साल से कर रहे हैं तो उसका कार्बन क्रेडिट नहीं बन सकता। बट हैप्पी टू टॉक उसके बाद थोड़ा सा वन ऑन वन। लास्ट क्वेश्चन प्लीज, लास्ट क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम वाटर सेविंग करते हैं DSR से, इसका भी कार्बन क्रेडिट होता है कोई? वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी के लिए वो मीथेन के लिए हो गया ना, कि अगर हम DSR कर रहे हैं तो मीथेन कम होगा, इसलिए कार्बन क्रेडिट मिलेगा। को वाटर सेव कर रहे हैं उसका तो कार्बन क्रेडिट कोई नहीं। एक क्वेश्चन ये है। हाँ, तो उसका ऐसे रहता है कि कार्बन क्रेडिट तो डेफिनेटली कार्बन कम करने का ही मिलता है, दैट इज मीथेन इज अ कार्बन इक्विवेलेंट। मगर वाटर सेविंग का एडिशनल आपको डिमांड या प्राइस एडवांटेज मिल सकता है। ऐसी कंपनियां हैं, पर्टिकुलरली ये जो डेटा सेंटर इंडस्ट्री अभी बन रही है, आपको पता है कि डेटा सेंटर्स में पानी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, और इसीलिए ये कंपनीज आर वेरी कॉन्शियस, दे वांट टू ऑफसेट देयर वाटर कंजम्पशन। जो बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम करते हैं वो दिखाना भी चाहते हैं कि हम दूसरी जगह पे वाटर को सेव कर रहे हैं। तो जो मीथेन क्रेडिट है, some companies are willing to pay premium for your water benefit. So water and carbon credits are different, मगर दोनों अगर benefit combined है तो उसका आपको additional premium possibly मिल सकता है। Probably transplanting में अगर आप AWD करते हैं तो उसको आप ट्राई कर सकते हैं। दूसरा था मेरा कि 1 साल हमने वो पराली मिक्सिंग कर लिया तो उस साल का मिल गया, अगर अगले साल भी करते हैं फिर नहीं मिलेगा? नहीं, इसमें ये भी बहुत स्पेसिफिक हो गया, लेकिन हर 8 साल में रीबेसलाइनिंग करनी होती है। 8 साल तक अगर इनकॉर्पोरेट करते रहेंगे, कार्बन बढ़ता रहेगा तो उसका क्रेडिट मिलता रहेगा। फिर 8 साल बाद वापस से बेसलाइन सेट हो जाएगी, फिर उसके ऊपर जो होगा वो मिलेगा। ऐसा रहता है। अभी एक क्वेश्चन सभी ने किया था, उसका एक आंसर थोड़ा सा कुछ थंब रूल कि 1 एकड़ में किसी को कितना मिल सकता है, 4000, 10000 या 2000? कितना CO2 इक्विवेलेंट, जैसे मैं बताया ना कि 1 टन CO2 इक्विवेलेंट के लिए आपको 1 क्रेडिट मिलेगा जी। आप DSR करते हैं 5 टन CO2 इक्विवेलेंट या 10 टन के बीच में मान लीजिए आपका होगा, उसी हिसाब से होगा। लेकिन ऐसा बहुत नहीं, इनको पता होगा ना, इन्होंने लिया है कि 5000 मिलेगा कि 10000 मिलेगा। ये बात एक बार फार्मर को बताना पड़ेगा। जैसे इन्होंने काम किया है, इतनी देर काम करते हैं तो पैसा मिलेगा कितना? अगर मेरे को 1000 रुपये मिलेगा तो मैं क्यों झंझट में पड़ूँ इतने बड़े? तो मेरे को ये बताओ कि मिलेगा कितना? हम इतना काम कर रहे हैं, इतना सारा कुछ कर रहे हैं, मिलेगा? अगर 5-7 हज़ार मिलता है फिर तो ठीक है, 1000-1500 मिलता है तो छोड़ो।
तो एक अलग बात होगी, ये बताइए। सर मैं और दूसरी कंपनी के लिए तो नहीं कह सकता, लेकिन जो भी हमारे फार्मर्स जो हमारे से जुड़े हुए हैं, और लगभग 30 लाख एकड़ आज की डेट में हमारे प्रोग्राम में 7 स्टेट्स में जुड़े हुए हैं, और उनके साथ हमारा बहुत क्लियर है कि जो क्रेडिट आएगा उसका 75% फार्मर को जाता है और 25% मार्जिन, और जो एवरेज, हाँ मैंने आपको रेंज भी बताई कि ना कि रेंज बता हेक्टेयर दो, में रेंज बता दो, मेरे को पता तो होना चाहिए ना। पॉसिबल रेंज। पिछले साल 30 रुपए था, 20 रुपए था, आपकी 8 रुपए रहा। ठीक हो, एक तो बहुत ज्यादा सर्टिफिकेट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 8 रुपए से 20 रुपए तक आलू का रेट चलता है। रेंज बता सकते हैं ना, यही बता दो कि इसका रेंज क्या बता चलता सकते हैं। हाँ तो है। कोई बताओ ना एक। वो अगेन तो उसकी तो चाहिए। ये कार्बन मार्केट जो है वो बहुत इनिशियल स्टेजेस में है, पहले 5-6 साल नहीं नहीं वो, क्योंकि वो पूछा कि आज का रेट बता दीजिए, ये मंडी नहीं है इसकी, वो अगर नहीं देखिए 10 साल बाद मंडी बनेगी उसकी, तो उमंग मेरे को 2000 मिलेगा, 3000 मिलेगा। जोशी जी आप तो बहुत पैसा बांट लिया, आप तो कुछ तो बता दो भाई, एक एकड़ में कितना जाएगा? Sorry, I think we better take this question one-on-one, after we end the conference, because in the interest of time, people are to catch flights also. So I know this is a very interesting topic, and panel second में there are more questions than answers. There are more questions than answers. The carbon market is evolving right now, and there will be more certainty. We can say that in the next 1 or 2 years, we will come to a standardized benchmark or something in future. We don't know right now, but this is where we stand right now. We started the conference with genomics, gene technology, whatever, and we of course closed with behavioral and bottom line question. What is the income? What is the money that we need to show to the farmers? That is the ultimate question. We will address it in the next edition of the DSR, I believe. And thank you, sir, for all the insightful remarks, comments, and also questions. Sorry, it's a time. In the interest of time, it is an organizer's difficulty. We also need to allow people to move. So thank you so much, all the panelists. I really appreciate your insightful comments, and we close the conference here, and thank you very much, everyone, for attending and paying your attention. Thanks a lot. Thank you, sir. I would request Sri Raghavan, sir, our moderator, to kindly do the honors of presenting mementos. We begin with our eminent panelist, Dr. R. Mahendra Kumar. And we begin with our session chair, Dr. Sudhanshu Singh. Dr. R. Mahendra Kumar. Dr. N.T. Yaduraju. Dr. Gopala Krishnan S. नहीं और दो है, दो और हैं, दो और हैं. Yes, Dr. Gopala Krishnan. Yeah, that's okay. Thank you. So I think we've run short of the. Okay, yes, we have. And can I request for a group photograph, please? And may I request for a group photograph, all the panelists to kindly come forward. So distinguished dignitaries, esteemed speakers, delegates, industry leaders, researchers, our policymakers, and our farmer representatives, we arrive to the close of this insightful and impactful conference. On behalf of the organizers, I extend a grateful, heartfelt gratitude to eminent dignitaries for their visionary leadership, senior officials from the Ministry of Agriculture and ICAR, distinguished scientists and policy experts, industry leaders and carbon market innovators, multilateral partners, and above all, we thank all the farmers who are the true custodians of sustainability.
A special appreciation to FSII for creating this powerful platform that brings together research, policy and practice under one roof. Thank you to each one of you for your active participation. We look forward to your continued collaboration in building a sustainable rice ecosystem for India. With that, ladies and gentlemen, we thank everyone. तहे दिल से आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपका आगे का दिन शुभ हो. नमस्कार. Good evening.